یہ ماں نہیں یہ ڈین ہے۔ اس سنگ دل ماں نے ایک ایسی فرعونیت دکھائی، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ 7 سالہ معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ اس ظالم صفاق ماں نے ایک ایسی فرعونیت دکھائی کہ اپنے شوہر کی خاطر، اپنے شوہر کی اما پر اس معصوم بچے کی جان لے لی اور قتل کر دیا۔ اس کے پیچھے جب اصل حقائق اور محرکات جانیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور آپ کا کلیجہ جو ہے منہ کو آئے گا، اور آپ خود بتائیں گے اس ویڈیوز میں اور کمنٹ سیکشن میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ آپ جب مکمل حقیقت جانیں گے تو آپ ایک دفعہ لرز جائیں۔ صفاق خاتون نے اپنے معصوم بچے کو شوہر کی خاطر قتل کیوں کیا ہے، آگے چل کے تمام حقیقت کے ساتھ آپ کو آگاہ کروں گا۔ دوسری خبر سہیوال کی ہے کہ معمولی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گھر میں گھس کر کتنے لوگوں نے شدید فائرنگ کی، کون کون زخمی ہوا، کون اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، اور خواتین بھی زخمی بتائی جا رہی ہیں۔ جب حقیقت آپ کو ایک ویڈیوز کلپ میں بھی سناؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی پرانی درینہ دشمنی ہے، کوئی اور تنازع چل رہا ہے جس کی وجہ سے گھر میں گھس کر ان ملزمانوں نے، ان کا نام کیا ہے وہ بھی آپ کو حقیقت آگے چل کے بتاؤں گا۔ آپ نے مکمل ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ انفارمیشن آپ کو اچھی لگے تو لازمی لائک اور آگے شیئر کرنا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل کر لیں، جب بھی ویڈیوز لگائیں اس کا نوٹیفیکیشن آلریڈی آپ تمام دوستوں تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل منہاج یونیک ولاگز اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر روان۔ ناظرین، آج 2 افسوسناک خبریں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے خبر رکھنے والا ہوں اوکاڑا میں جو ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اس طرح کی صفاق ماں نے سنگ دل درندہ صفت فرعونیت اس ماں نے دکھائی ہے اپنی شوہر کی خاطر، اپنے شوہر کی اما پر کہ معصوم بچے کا کیا قصور تھا۔ پیش آنے والا یہ افسوسناک واقعہ نہایت دل دہلانے والا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اوکاڑا کا علاقہ شفقت بلاک 27 والا روڈ میں پیش آیا ہے۔ ملزمہ ماں کی شناخت نادیہ بی بی کے نام سے ہوئی ہے۔ اس نے اپنے ہی 7 سالہ بیٹے علی حمزہ کو مبینہ طور پر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس سنگین اقتدام کے پیچھے گھریلو مسائل اور دوسری شادی کا معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہ ماں نے اپنی ہی بچے کی جان لے لی، ملزمہ گرفتار ہو چکی ہے۔ 27 والا روڈ بلاک میں دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جہاں مبینہ طور پر ایک ماں نے اپنے سگے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے خاتون نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور سوتیلے باپ کو بچہ منظور نہیں تھا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ماں نے اپنے دوسرے شوہر کے کہنے پہ یہ ابتدائی اقدام اٹھایا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس فوری طور پر موقع پہ پہنچی اور ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق واقعے کی تمام پہلو سے تفتیش جاری ہے، جبکہ حقائق سامنے آنے کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس ظالم صفاق ماں نے اپنے جو بچے کا سوتیلا باپ ہے اس کی یعنی کہ خاطر اس نے اپنے معصوم بچے کو، سگے معصوم بچے کو 7 سالہ حمزہ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، اس کا گلا دبا کر۔ جب معصوم بچے بستر پر آرام فرما رہا تھا، سو رہا تھا، تو اس نے اپنے شوہر کی ماں پر، اپنے شوہر کے دباؤ میں آ کر اس ظالم درندہ صفت ماں نہیں یہ ڈین ہے، اس نے ایک ایسی فرعونیت دکھائی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ماں کا ایک ایسا مقدس رشتہ ہے، جب ماں کا رشتہ لبوں پہ آتا ہے تو لب بھی ایک دفعہ کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک ایسا مقدس رشتہ بنایا ہے ماں کا، لیکن یہ ماں نہیں، یہ تو ایک صفاق سنگ دل فرعونیت دکھائی ہے ظالم صفاق نے کہ اپنے شوہر کی خاطر، اپنی زندگی کی لذت کے لیے اس ظالم نے اس دوسرے شوہر کی خاطر، سوتیلے باپ جو سوتیلا باپ ہے اس کی خاطر اس معصوم بچہ حمزہ کو قتل کروا دیا۔ جب وہ معصوم بچہ بستر پر رات کو آرام فرما رہا تھا، مبینہ اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس ظالم صفاق درندہ صفت ماں نے رات کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ آج مجھے بتائیں، ایک دفعہ دل مٹھی میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے یا نہیں آتا؟ سرائے عالمگیر میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا 2 سے 3 ماہ پہلے۔ یہ ایک خاتون تھی جس کے 2 بچے تھے اور اس کا شوہر جو ہے وہ اپنے کام کاج پر گیا ہوا تھا، پیچھے سے سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک کا یوز کرتی تھی، اور ٹک ٹاک پر ایک اس لڑکے کے ساتھ اس کی فرینڈ شپ ہو گئی۔ اس فرینڈ شپ کی خاطر اس محاذ تک بات پہنچ چکی کہ آپس میں شادی کرنے کے لیے تل گئے اور تیار ہو گئے، لیکن اس لڑکے کو، اس ظالم صفاق درندہ صفت لڑکے کو وہ بچے نامنظور تھے۔
वो कहते थे कि इन बच्चों को साथ ना लेके आना, फिर तुम्हें मैं नहीं मिलने वाला। वो एक प्यार मोहब्बत में उसने अपने 2 मासूम बच्चों को उस जालिम दरिंदे सिफ्त आशना की खातिर उस मासूम बच्चों को इबरतनाक जो है ना मौत दी। मैं कहता हूं कि आप एक दफा लरज जाएंगे जिन्होंने ये खबर सुनी थी। आजाद कश्मीर के इलाके में उस जालिम सफाक मां ने अपने आशना की खातिर 2 मासूम बच्चों को जो साथ लेके गई थी, उस आशना ने और उसके साथ कैसी घिनौनी प्लानिंग बनाई, उन मासूम बच्चों को जो है ना कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर भी नहीं रुकी, उस जालिम सफाक ने क्या किया कि उन मासूम बच्चों के ऊपर तेजाब फेंक दिया, इनकी डेड बॉडी जो है वो पहचानी ना जा सके। अब भी नहीं रुकी, उसके बाद अशना के साथ मिलकर उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उन जालिम 2 बच्चों को फेंक दिया। उसके बाद ऊपर मिट्टी डाल दी और तेजाब डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। मैं कहता हूं वो भी मां नहीं थी, वो भी एक कातला मां ने अपने मासूम बच्चों को कुर्बान कर दिया था अपनी आशना की खातिर। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। मैं खुदा के लिए हाथ बन के सीएम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की जो संग दिल सफाक औरतें हैं उनको एक ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि मैं कहता हूं कि माशरे में जो इस तरह की गलाजत और गंदगी फैली जा रही है, आशनाक के साथ कोई भाग रही है, कोई अपने शौहर को कत्ल कर रही है, कोई इस तरह के अफसोसनाक मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन इस तरह के सूबा पंजाब में बहुत अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। खुदा के लिए इस पर कोई कानून बनाया जाए या कोई कानून बनाकर उसको सूबाई असम्बली में पास करवाया जाए कि कोई भी खातून अगर मासूम बच्चों को कत्ल करती है, हाँ ठीक है, अगर वो अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, खुला ले ले, तलाक ले ले, डिवोर्स ले ले, हमेशा के लिए अपने शौहर को छोड़ दे और आशना के साथ शादी करना चाहती है या कोई दूसरी शादी करना चाहती है, वो उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन मासूम बच्चों को क्या कसूर है। उसके बाद वो वहां भी नहीं रुकती। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं, वो अपने अशनाक के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर देती हैं। खुदा के लिए इसके बारे में सोचना चाहिए हमारे पंजाब गवर्नमेंट को और सीएम साहबा जो है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को कि इस तरह के बहुत ज्यादा खौफनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। खुदा के लिए इसके ऊपर नजरसानी की जाए और इन मासूम जो कीमती जिंदगियां हैं उनको बचाई जाएं। चाहे कोई शौहर है, चाहे कोई बीवी है, चाहे कोई बच्चे हैं, कोई भी शादी करना चाहता है उसके लिए कितने नुकसानात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी इस वीडियोस के तसलसल से काफी जो है ना हद तक हमारी वीडियोस आगे पहुंचाएं और शेयर करें और सीएम साहबा तक, ताकि इस पर अमल दरामद हो सके। ये जालिम दरिंदा सिफ्त मां ने अपने मासूम बच्चे को कत्ल किया, अपने शौहर के कहने पे दूसरी शादी कर रखी थी और बताया जाता है कि जो इस मासूम बच्चा जो है 7 साल हमजा, इसकी दादी की मुद्दत में FIR दर्ज हो चुकी है और मुकदमा दर्ज हो चुका है इस खातून के खिलाफ और पुलिस ने फौरन इसको मकामी पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मानी जाए इस वीडियो के तसलसल से कि एक ऐसी इस तरह की दरिंदा सिफ्त माँ को, ऐसी संगदिल माँ को जो इस तरह के वाक़यात करती हैं, उनको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि माशरे में एक ऐसा सबक अमेज याद रहे, तारीख में लिखा जाए कि कोई भी अगर इस तरह की संगदिल माँ इस तरह की सफाकियत और फिरौनियत दिखाएगी उसके साथ भी ऐसा ही हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हाफ फ्राई होते हैं, फुल फ्राई होते हैं, क्राइम करते हैं, कत्ल करते हैं, इक़्तिदाम कत्ल, चोरी, डकैती जो भी करते हैं वो अपने अंजाम को पहुंचते हैं। अगर एक खातून इस तरह की मामलात करती है, वो अगर अपने अंजाम को पहुंच जाएगी तो मैं कहता हूं पीछे सबके लिए एक सबक अमेज पैगाम हो जाएगा कि कभी ऐसा ना करना, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हकाम बाला तक पहुंचाएं। नाज़रीन, दूसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूं। साहिवाल मामूली लड़ाई झगड़े के बाद मुल्ज़िम तौसीफ हमरे मुल्ज़मान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में जाफिर जख्मों की ताम ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि शाहनवाज और एक लेडीज जख्मी हैं। जनाब मरियम मोहतरमा साहिबा से गुजारिश है, 2 बंदे, तीसरा उनका जो खैर ख्वाह था शाहिद मोहम्मद अली खान गादी, 3 बंदों को फायर मार गए। एक के सीने में लगा है, एक के पाँव में लगा है, एक के बाजू, लेडीज जो है उसके बाजू में लगा है। चाचू है हमारा, चाचू उसके सीने में लगा है फायर। वो हमारे घर में आके फायर मार के गए हैं। तौसीफ ने फायर चलाया है। पुलिस पहले आई थी हमारे घर के पास। मैंने कहा था कि ये इन लोगों ने शराब पी हुई है और ये हमें मारना चाहते हैं। पुलिस को वो शायद मोहम्मद अली खान का छोटा भाई शायद ने भेजा था, वो वापस लेके गया है। पुलिस को मैंने कहा था कि वो शराब पी के बैठे हुए घर में, मैं पकड़वाता हूँ। पुलिस को वो वापस लेके चले गए। पुलिस बिकी हुई है, उनके लोग हैं वो।
वो उनकी मांग। इसको सजाए मौत की सजा दी जाए। शाहिद मोहम्मद अली खान सागर और तुसीफ, इनको सजाए मौत की सजा दी जाए। ये अपील है हमारी। ये मेरी माँ, ये देखे तेरी माँ। सहीवाल का इलाका चक नंबर L101/9 में पेश आया है। वाक़े के बाद DPO सहीवाल ने फौरी नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। पुलिस ने मुलजिम तौसीफ की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दी हैं। मुख्तलिफ मकामात तलाश जारी है। FIR की तफसील पुलिस के मुताबिक मुकदमा कत्ल और पुलिस की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद FIR में मुलजिम को नामजद किया गया है, जबकि शवाहिद और गवाहों के बयानात भी इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि केस मजबूत बनाया जा सके। अहम पेशरफ्त वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पाई जाती है, ताहम पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल में रखा हुआ है। हकाम का कहना है कि जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। ये केस अभी ज़ेर तफ्तीश है। इसकी मुकम्मल हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ आएगी कि वजह क्या बनी, मामूली लड़ाई क्या बनी थी जिसकी वजह से तनाज़ो ज़मीन का था, दीन दुश्मनी थी, बच्चों की लड़ाई थी। क्यों हुआ ऐसा कि एक ऐसे घर में घुसकर, किसी के घर में घुसकर फायरिंग करना, ये मैं कहता हूं कि दहशत गर्दी है। एक ऐसी उस मुलजिम के खिलाफ इबरतनाक उसको भी सजा दी जाए और जिनका नाम उस बंदे ने लिया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पेश आया है। ये कत्ल गैरत थमने का नाम नहीं ले रही है। हमने तो सोचा था कि CCD आ चुकी है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को तकरीबन 1 साल हो चुका है और काफ़ी क्राइम में काबू पा भी लिया था CCD ने, लेकिन इस तरह के बहुत ज़्यादा कत्ल गैरत बढ़ चुकी है। नाज़रीन, आप भी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, आपने इस तरह की इतलात सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। यकीन करें, यानी कि पूरे पंजाब में तकरीबन ये 48 घंटों में 10 से 12 लोग कत्ल हो चुके हैं। टेक्सला में कत्ल हो चुके हैं 2 से 3 लोग, उसके बाद उकाड़ा में, सहीवाल में, उसके बाद ये जो गुजरात में अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, तो उसके बाद शेखुपुरा में, मंडी बहाउद्दीन में ये कत्ल गैरत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब सवाल ये उठता है कि CCD ने क्या अपना जो वर्क है वो स्टॉप कर दिया है, जिसकी वजह से खौफ व हिरास जो है लोगों के दिलों में CCD का एक टहका बन चुका था और लोग डरते थे कि खबरदार ऐसा काम किया करे क्रिमिनल कोई भी अगर आपने किसी एक्टिविटी में पाए गए तो आप नहीं बच पाओगे CCD से। क्या ये सवालात उठ रहे हैं कि CCD ने अपना जो इस तरह की एक्टिविटी है या इस तरह के जो वाक़यात हैं क्रिमिनल लोगों के खिलाफ रोक दी हैं या स्टॉप कर दी हैं, किस वजह से की हैं, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में तकरीबन 72 घंटों में काफ़ी लोग जो है ना, ये जो मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, यानी कि 10 से 15 लोग कत्ल हो चुके हैं तकरीबन ये 48 से 72 घंटों के दरमियान में। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं कि CCD ने अपना वर्क क्यों, अपना काम जो है क्यों स्टॉप कर दिया है, उसके बाद क्यों नहीं तेज़ी आ रही है, क्यों नहीं मुल्ज़मान गिरफ्तार हो रहे हैं। इस तरह के सवालात उठ रहे हैं और लोग कर रहे हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पर सवालात उठ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, इस खातून का केस भी इसने अपने शौहर की खातिर इसने जो है ना मासूम बच्चे की जान ली, अपने सगे बेटे को कत्ल किया अपने शौहर की अमा पर, इसको भी, इसका केस भी CCD के हवाले किया जाए। उसके बाद ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उकाड़ा में कि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए और एक खातून ज़ख्मी है, एक शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है और मुलज़िम तौसीफ अभी वो अपने जो हमरा उसके मुलज़मान थे उनके हमरा वो घर में घुसता है और हमला करता है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आ रहे हैं कि असले की जो बड़ी नुमाइश है क्यों नहीं थम रही है। जो असला रखा हुआ है, सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं, असले पर कोई पाबंदी नहीं है कि इस तरह के घर में घुस जाते हैं। कभी सरगोदा में MPA साहब के ऊपर डाकू हमला कर देते हैं और कभी कोई जो है ना हवाई फायरिंग कर देता है, कभी लड़कियां जो है ना अपनी शादी में हवाई फायरिंग कर देते हैं। समझ नहीं आती, पता नहीं हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। माशरे में इस तरह की गलाजत और इस तरह के वाक़यात जो आ रहे हैं, यकीन करें माशरे में इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़यात आ रहे हैं, यकीन करें समझ नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस माशरे की तरफ जा रहे हैं। पूरे माशरे को खुदा के लिए इस तरफ ना उधेड़ें, नहीं तो आप कल इस तरह के पछतावे करेंगे। और अफसोसनाक वाक़यात जो हो रहे हैं, खुदा के लिए इनको जो है ना रोकना चाहिए। हमारी पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है, IG साहब पंजाब के जो हैं राव अब्दुल करीम साहब से, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, CM साहबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि कत्ल गैरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, खुदा के लिए क्राइम पर काबू पाया जाए। ये 2 बड़ी खबरों की बड़ी इन्फॉर्मेशन
لیٹسٹ نیوز آپ کے سامنے رکھی ہیں. جو ہی ہمارے پاس اور کوئی اہم پیش رفت ان کیسوں کے بارے میں آئے گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کو آج کی ہماری انفارمیشن کیسی لگی آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.